الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنحة عن الإثم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مقبول اور نیک بندوں کی جو اہم اوصاف بیان فرمائی ہیں تو ان میں ایک اہم وصف یہ بھی بیان فرمائی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کیسے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کی اوصاف میں سے ایک اہم وصف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا مانگنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی اور اس سے بڑھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرض نمازوں کے علاوہ آدمی جب بھی کوئی نفل نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے، نماز بھی عزیز ہے اور نماز پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد کون سی نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی اور عملاً بھی ترغیب دی، قولاً بھی ترغیب دی، زبانی طور پر اس کے فوائد بھی بیان فرمائے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور ترغیب اتنی تھی، شوق اتنا تھا دلوایا کہ بہت سارے صحابہ کرام ساری رات قیام کرتے تھے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوق بتایا۔ احادیث کی کتابوں میں قصہ آ رہا ہے، 3 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ایک دن مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، گناہوں کا انبار ہم پر بہت زیادہ ہے، وقت ہمارے پاس زندگی کا تھوڑا ہے اور قیامت کا دن اور اس کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں اور وہاں جتنی نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ لے کے جانا چاہیے تو ہمارے پاس وہ ذخیرہ بہت کم ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی چاہیے۔ کتنی بڑھانی چاہیے؟ تو پہلے مرحلے پر یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی نیکیوں کو وہاں تک لے جائیں جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔
تو ان کا اب फ़र्ज़ नमाज़ें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्ज़ों के अलावा रात को तहज्जुद कितनी पढ़ते हैं। फ़र्ज़ रोज़े तो हमारे सामने रखते हैं, उनके अलावा नफली रोज़े कितने रखते हैं। तो ये घरवालियों से, अज़वाज मुतहरात से पता चल सकता है। उनके पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़े और नफली नमाज़ों की मिक़दार कितनी है। और ज़हन में नक्शा ये था कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, महबूब हैं, तो सारी सारी रात नफल में तहज्जुद में गुज़रती होगी। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गालिबन हाज़िर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़ों और नमाज़ों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। तो उन्होंने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का कुछ हिस्सा आराम फरमाते हैं, कुछ हिस्सा तहज्जुद में गुजारते हैं। नफली रोज़ा कभी रखते हैं, कभी छोड़ देते हैं। अब ये जवाब उनकी तवक्को से कुछ कम था, जितना वो अपने जहन में एक तवक्को बना के गए थे। हमारे जैसा होता माज़अल्लाह तो बदगुमान हो जाता, अच्छा अच्छे नबी हैं कि रात को सोते भी हैं, और ये बदगुमानी उनके ईमान को ज़ाय कर देती। लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, सोहबत याफ्ता थे, इसलिए किसी किस्म की बदगुमानी नहीं आने दी अपने दिलो दिमाग में, बल्कि कहा कि हमसे गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बख्शिश के लिए इबादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जन्नत आपके लिए तो दूसरे इंसानों के लिए शफात के वादे हैं कि आप दूसरों की शफात फरमाएंगे। हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई गारंटी नहीं दी। हम अपनी बख्शिश के लिए इबादत के मोहताज हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतनी इबादत भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, एक अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है, ज़रूरत इतनी की भी नहीं है। इसलिए हमने ये जो तय कर लिया कि इबादत को वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है, ये हमारी गलती थी, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा अब तय करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ये सामने आ गई है, अब कितनी बढ़ानी है। तो तीनों ने वहाँ खड़े खड़े एक मुआहदा किया अल्लाह के साथ, लेकिन दूसरों को गवाह बनाकर। एक ने कहा कि आज के बाद मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूँगा, रात को कभी सोऊंगा नहीं। दूसरे ने वादा किया कि साल के जो चंद रोज़े रखने मना हैं, 5 रोज़े साल में ऐसे हैं जहाँ रखने मना हैं, उनके अलावा सारा साल नफली रोज़े रखूँगा, एक रोज़ा भी कज़ा नहीं करूँगा। और तीसरे ने कहा कि मैं सिरे से शादी नहीं करूँगा, इसलिए कि बीवी हो गई, बच्चे हो गए, उनके ख़र्चों के मसाइल और उनके दूसरे मसाइल में कितना ज़िंदगी का हिस्सा गुजर जाता है, तो मैं वो सारा हिस्सा भी इबादत में गुजारूँगा। तीनों ये मुआहदे करके घरों को चले गए और उस ज़ौजा मुतहरा ने भी उनके ये वादे और मुआहदे सुन लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो उस अम्मा जान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, इस तरह से ये 3 हज़रात आए थे और ये वादे करके गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हज़रात को बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुमने ये वादे किए हैं? जी या रसूलल्लाह किए हैं। फरमाया मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ तुम सबसे ज़्यादा है, और बंदे को जो चीज़ इबादत पर मजबूर करती है वो ताल्लुक़ माल्ला होता है। मेरा जितना ताल्लुक़ माल्ला है वो तुम्हारा नहीं है। तो जब मेरे लिए इतनी इबादत काफ़ी है कि रात का कुछ हिस्सा मैं सोता हूँ, कुछ जागता हूँ, मैं नफली रोज़े कुछ रखता हूँ, कुछ छोड़ता हूँ, तो तुम्हें ये इतनी इबादत क्यों काफ़ी नहीं? तो बताना ये मकसूद है कि सहाबा किराम का जज्बा यहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारका की वजह से जज्बा ये था कि हमारी सारी सारी रात इबादत में गुजरनी चाहिए, नवाफिल में गुजरनी चाहिए। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी यही थी, अमल भी यही था, और उसके फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे कि रात को अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है।